Hello students, this is lecture number 8 on topic magnetic effect of electric current. In last lecture, by using Biot-Savart's law, we derived magnetic field of induction at the center of circular coil. यहाँ देखो हम लोगों ने एक circular arc लिया था. This circular arc is carrying the current. Because of that current, magnetic field of induction at the center of circular arc was derived in a last lecture. अगर circular arc subtends an angle theta at the center of curvature, तो हम लोगों ने ये formula derive किया था. P is equal to mu 0 upon 4 pi I upon R. R is the radius of circular arc, and theta, this is the angle subtended by the arc but expressing radius. तो इस वीडियो को देखने का इसका पहला वाला वीडियो नंबर 7 देख लो कंपल्सरी, तो ये भी थोड़ा सिंपल जाएगा. फिर हम लोगों ने इसके केसेस डिस्कस किए थे. अगर जो आर्क है ये क्वार्टर सर्कल, अगर आर्क क्वार्टर सर्कल रहेगा तो थीटा का वैल्यू रहेगा π/2 रेडियन. थीटा अगर π/2 रेडियन लेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन at the center of quarter circular arc. सेमी सर्कल रहेगा तो एंगल लेने का पाई रेडियन. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क. अगर कंप्लीट सर्कल रहेगा तो ये थीटा का वैल्यू 2 पाई लेने का, तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग द करंट एंड हैविंग अ सिंगल टर्न. Agar it has n number of turns, then all the turns are carrying the current in the same direction, either clockwise or anti-clockwise. So because of each turn, what is the magnetic field at the center is magnitude wise same as well as direction wise is also same. तो इस फॉर्मूला को खाली n से मल्टीप्लाई कर लो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट. या तो n इंट्रोड्यूस करो. So this is what we discuss in a last lecture by using Biot-Savart's law. Now in today's lecture, let us derive magnetic field of induction because of circular coil carrying the electric current, but at a point on the axis. तो डायग्राम में देखो ये circular coil है. This circular coil has center O, radius R. It is carrying the current I in anti-clockwise direction. Circular coil है जिसका radius है R, center O, carrying the current in anti-clockwise direction. So if it is carrying the current in anti-clockwise direction, यहाँ पे magnetic field कहाँ पे रहेगा? Vertically upward ही रहेगा, according to right hand loop. Now do the thing. Let this coil is kept in a XY plane. ये देखो ये X axis है, ये Y axis है. Coil is kept in a XY plane so that center of the coil coincides with the origin and Z axis is perpendicular to the plane of coil. Right? अभी ये point P है. This point P is at a distance Z from the center of circular coil or at a distance R from the point of circumference. Point P कहाँ पे present है? At a distance Z from the center of coil या circumference का कोई भी point लो. If the point of circumference is joined with the point P, तो ये जो hypotenuse मिलेगा, it is what? R. This is the position of point of observation where we are about to find magnetic field of induction. ठीक है. तो let us use Biot-Savart's law for that. Law कैसे यूज करेंगे देखो. Take a small element of circle. Circle का small element लो. Though that small element is actually arc of a circle, but being very small, it appears straight line to us. तो मैं इसको लेंथ एलिमेंट बोलेगा.
through the length element current I is passing. So I into dl, I call that length as a current element. It's called as what? Current element. अभी करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट कितना है? I dl. Because of current element I dl, let us find out the magnetic field at point P. यह आएगा because of one current element. तो जो डिस्कशन हम लोग एक करंट एलिमेंट के लिए करेंगे, वही एलिमेंट ऑफ सर्कमफरेंस पे कहीं पे भी लो, डिस्कशन सेम रहेगा. And because of each current element, magnitude and direction of magnetic field at point P will be same. तो पहला एक के लिए डिस्कस करते हैं, फिर टेकिंग इंटीग्रेशन जनरलाइज करते हैं. अभी देखो, ये लेंथ एलिमेंट अगर मैं लूं, लेंथ एलिमेंट का ये मिड पॉइंट है, ज्वाइन द मिड पॉइंट विद द पॉइंट P. तो ये जो R मिलेगा, ये R सर्कमफरेंस का थोड़ा पोर्शन को परपेंडिकुलर है. यहाँ जो एंगल है, अगर मैं उसको अल्फा से डिनोट करूँ तो ये 90 डिग्री रहेगा. ठीक है. और जो डायग्राम में थीटा दिख रहा है, ये एंगल बिटवीन द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सर्कमफरेंस विद द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो ये डिस्टेंस R और लेंथ एलिमेंट में एंगल कितना है? 90 डिग्री. So what is the magnitude of magnetic field at point P due to the current element? That can be found by Biot-Savart's law. ये पैराग्राफ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया. अभी देखो, ये डायग्राम मैंने वापस रखा है, ये डायग्राम कैरी करेंगे. ये देखो आ गया, dB is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. इस करंट एलिमेंट की वजह से एट ए डिस्टेंस r, यानी पॉइंट P पे ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा. राइट. यहाँ एंगल कितना है? मैंने अल्फा लिया, टेम्पररी एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट and the segment joining the midpoint of length element and point of observation. ये अल्फा. तो ये एंगल एक्चुअली कितना है? 90 डिग्री है डायग्राम. तो साइन 91 हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर. साइन अल्फा इज साइन 90 डिग्री एंड इट इज 1. ठीक है. अभी पॉइंट P जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इसको परपेंडिकुलर रहेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. मतलब ये स्ट्रेट पोर्शन लो, इस स्ट्रेट पोर्शन को राइट हैंड में पकड़ो, सो दैट 4 fingers आर टर्न अराउंड इट एंड थंब इज स्ट्रेच अलोंग शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो पॉइंट P जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये नॉर्मली रहेगा. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सेगमेंट रहेगा. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट. क्लियर? ओके. अभी ये हो गया एक एलिमेंट के लिए. अगर मैं एलिमेंट दूसरी जगह लूं तो ऐसे ही आएगा, लाइक दिस. तो पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ ईच एलिमेंट, पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ ईच लेंथ एलिमेंट ऑफ सर्कमफरेंस, ये रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. और डायरेक्शन कैसे रहेगा? ये वाला. मतलब अगर मैं सर्कमफरेंस का पॉइंट P से ज्वाइन करूं तो ये डिस्टेंस R आएगा. R को मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. ना हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेट फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? देखो, ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सर्कमफरेंस विद द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर ये थीटा है तो ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. लेट इट इज x. ये x है. तो अगर ये x है तो ये x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला. तो ये और ये 90 डिग्री, ये और ये भी 90 डिग्री. तो अगर ये x है,
ये कॉमन हो गया, ये एक्स है। एक्स और थीटा कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये देखो ये एक्स और ये थीटा कॉम्प्लीमेंट्री थे। एक्स और ये कुछ एंगल 90 डिग्री, ये कुछ एंगल और ये 90 डिग्री, तो अंडरस्टूड ये भी एक्स रहेगा। फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लेने का, थीटा लेने। या नाउ if this is the direction of magnetic field due to the length element of circumference, it can be resolved into two perpendicular components. एक कंपोनेंट रहेगा along the z axis, एक कंपोनेंट रहेगा perpendicular to the z axis. ये कंपोनेंट थीटा का एडजेसेंट साइड है, तो ये रहेगा cos कंपोनेंट, तो ये हो गया db cos थीटा और ये हो गया db sin थीटा। ये एक लेंथ एलिमेंट के लिए, दिस इज हाउ यू कैन डिस्कस फॉर ऑल द लेंथ एलिमेंट हियर एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे जितने भी साइन कंपोनेंट्स होंगे, दे ऑल आर एक्टिंग एट पॉइंट पी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डाइवर्जिंग। आई अगेन रिपीट, ये एक एलिमेंट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये db cos थीटा है, ये db sin थीटा है, अब ये भूल जाओ। So all the dB cos theta are at point P upward, and at point P all dB sin theta are what, in horizontal plane, act at point P but in a diverging manner. तो सब dB sin theta जो at point P in horizontal plane and diverging है, उनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो dB sin theta कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन टू फाइंड फील्ड एट P इज 0। और जितने भी dB cos कंपोनेंट, dB cos थीटा कंपोनेंट है, वो पॉइंट P पे एक्ट होंगे और सभी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होंगे। तो पॉइंट P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा, क्योंकि dB cos थीटा एक सैंपल की वजह से था। ऐसे अगर हम लोग सब सैंपल्स लेंगे तो सभी को ऐड करना पड़ेगा, but all samples combiningly giving you a circumference जिसका रेडियस रहेगा 2 pi r। तो पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन मैग्नेटिक फील्ड यानी dB cos थीटा। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ये देखो ये आ गया। देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट है dB cos थीटा। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर cos थीटा, ये आ गया। अब यहाँ मैंने म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dl रखा। अभी हमें यहाँ जो नोन क्वांटिटीज है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करना। तो डायग्राम में देखो, इस थीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड है r और ये हाइपोटेन्यूज है स्मॉल r। तो cos theta can be replaced by capital R upon small r। ये हो गया कैपिटल R upon small r, राइट। ये देखो ये रिप्लेसमेंट आ गया। एंड इंटीग्रेशन dl, ये सैंपल एलिमेंट ऑफ सर्कम्फरेंस है जिसका रेडियस है r। तो इंटीग्रेशन dl हो जाएगा 2 pi r। ये फॉर्मूला है रिप्लेसमेंट। अभी इस फॉर्मूला में देखो r अपॉन r क्यूब है और ये r स्क्वायर यहाँ पे है। तो व्हाट इज r इंटू r, ये r क्यूब होगा, स्मॉल r क्यूब होगा। तो हम लोग स्मॉल r क्यूब को सब्सटीट्यूट करेंगे। कैसे देखें, वापस से राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल साइड है कैपिटल R, वर्टिकल साइड है Z और स्मॉल r या हाइपोटेन्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्मॉल r इज व्हाट, स्मॉल r स्क्वायर इज व्हाट, Z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो स्मॉल r is what, स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये मैंने लिखा। बट हियर आई वांट टू सब्स्टिट्यूट r क्यूब। अगर मुझे यहाँ r क्यूब सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेट मी मेक इट r क्यूब एंड लेट मी रेज द पावर ऑफ राइट हैंड साइड बाय 3। तो स्मॉल r क्यूब का वैल्यू हो जाएगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट, ये देखो ये तो आ गया, ये r मैंने अंदर ले लिया, ये देखो ये r मैंने अंदर ले लिया, तो ये r स्क्वायर हो गया,
ये आर क्यूब हो गया, और हम लोगों ने अभी आर क्यूब डिस्कस किया, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। सिंप्लीफाई करो, पाई वैल्यू गेट कैंसल, 2 reduces the 4/2, ये फॉर्मूला है। So this is the magnetic field of induction at a point on the axis of circular coil carrying the electric current. उस सर्कल का रेडियस रहेगा कैपिटल आर एंड पॉइंट is present on the axis at a distance z from its center. ये रहेगा, ये z distance है, ये रेडियस है। अभी ये जो फॉर्मूला है, आई कैन राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इक्वेशन 3 में पाई आर स्क्वायर को मैनेज किया। कैसे देखो, मैंने ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया। मैंने ये पर्पसली μ0/4 लिखा क्योंकि हम लोग को पढ़ने का आदत ही ऐसे रहता है फॉर्मूला। और दूसरी बात, μ0/4 ये जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। तो अगर हम लोग μ0/4 कैरी करते रहे तो कैलकुलेशन पार्ट आगे जाके सिंपल भी होगा। तो मैंने यहाँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 यहाँ आ गया, या 4 हो गया। पाई इंट्रोड्यूस किया यहाँ और यहाँ, सो आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ये आ गया एरिया ऑफ द सर्कल। ये हो गया सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन at a point on the axis of the circular coil carrying the electric current. Let the circular coil has n number of turns. So all the turns always carry the current in same sense, या clockwise या anti-clockwise. तो point P पे जो net magnetic field रहेगा, ये रहेगा n times the magnetic field due to single loop. तो मैंने इस फॉर्मूला में कैपिटल N को इंट्रोड्यूस कर दिया। So this is the magnetic field of induction at a point on the axis of circular coil having n number of turns. Clear? अभी इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। मानो मैंने ये Z0 कर दिया। अगर मैंने ये Z0 कर दिया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P कहाँ पे आ गया? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P coincides with the center of circular coil carrying the current. And what is the magnetic field at the center of circular coil the carrying the electric current? ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। देखो Z सब्स्टिट्यूट करो 0, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 2ni अपॉन, ये हो गया r क्यूब। अभी एरिया को भी सब्स्टिट्यूट करो, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, r रिड्यूस हो जाएगा, ये फॉर्मूला मिला। This is the magnetic field of induction at the center of circular coil carrying the electric current and having n number of turns. ये देखो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है, ये यहाँ। This is the formula. ठीक है, अभी दूसरा डेरिवेशन, 1 minute. राइट? अगर ये Z जो है, Z is very very large compared to radius of the circular coil. अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहेगा कंपेयर टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो आप इस कॉइल को बोल सकते हो शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था 11th में, ये हो जाएगा शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल। तो कंपेयर टू Z, R को इग्नोर कर दो, ये R ड्रॉप कर दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ R ड्रॉप किया, ये R ड्रॉप कर दो, तो ये Z क्यूब रहेगा, ये फॉर्मूला आ गया। μ0/4 2nia अपॉन Z। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ शॉर्ट डायपोल फाइंड आउट किया था, और ये फॉर्मूला था वो। इलेक्ट्रिक डायपोल भी फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ा था और ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो देखो, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है,
इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सोर्स है बार मैग्नेट, तो यहाँ देखो NIA is also called as magnetic dipole moment of circular coil carrying the electric current. तो ये तीनों फॉर्मूले एनालॉगस है, इसलिए देखो यहां से I का यूनिट है एम्पियर और A का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने 11th में बिना डिस्कस किए रट्टा मारा था, बाय हार्ट किया। ये तीनों फॉर्मूले एनालॉग। Sometimes they may ask you a question, give the analogy between current carrying coil, bar magnet and electric dipole. तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ये हम लोग वापस समराइज करेंगे दूसरे प्लेस पे। ओके, now in the next lecture we will discuss about the magnetic field at a point near the straight conductor carrying the electric current. Thank you.